کہ اگر سالار کے خیمے میں رات کو 20 سپاہی پہرا دیتے تھے تو یہ برخوردار دن کو بھی 40 سپاہیوں کا مطالبہ کرتا۔ بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بغداد میں اس کو ان تلواروں سے مشق کرنے کا جس قدر شوق تھا اسی قدر اصل تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ خوارزم کی فوجیں راستے سے لوٹ گئیں اور اسے مقابلے کے بجائے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ آپ کو اب بھی ڈر ہے کہ میں اس سے؟ مجھے نہیں، سپہ سالار کو ڈر ہے۔ اگر قاسم جیت گیا تو بغداد کی فوج میں ایک نااہل عہدیدار کا اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں بغداد کے دن گنے جا چکے ہیں۔ میں بغداد بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ آپ کے چہرے پہ جو دکھ ہے میں اسے محسوس کر رہا ہوں۔ کیا آپ واقعی بغداد سے بہت مایوس ہیں؟ میں واقعی بہت مایوس ہوں۔ آپ بغداد چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں؟ کہاں؟ مصر میں صلیب و ہلال کے مار کے پھر گرم ہو گئے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ تاتار اسلام کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کی بغداد میں زیادہ ضرورت ہے۔ کاش وہ شخص جو خوارزم میں ہمارے دفاع کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے اس قدر احمق نہ ہوتا۔ اس نے چنگیز خان کو قوت آزمائی کی دعوت دی ہے، لیکن اس قدر خوفناک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خلیفہ ناصر کو بھی یقین ہے وہ چنگیز خان سے قوت آزمائی کرنے کے بعد بغداد پر پھر قوت آزمائی کرے گا۔ اس لیے کیوں؟ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بولیے، مجھ پر اعتماد کیجیے۔ میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو سیاسی معاملات میں دخل دینے کا حق۔ میرے والد نے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ انعام حاصل کیا تھا۔ میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بہتری کے لیے آپ سے وفاداری کا عہد کرتا ہوں۔ آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد نے مجھے جس رفیق کی تلاش ہے قدرت نے اسے بھیج دیا ہے۔ اگر قدرت نے بغداد کے بے حس جمود میں حرکت پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے تو میں آخری دم تک آپ کے ساتھ دینے کا عہد کرتا ہوں۔ خدا ہمیں اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کون ہو تم؟ جی وہ مجھے رملہ نے بھیجا ہے۔ اس وقت وہ شاہی محل سے نکل نہیں سکتے۔ کوئی خاص اطلاع؟ خلیفہ کو ابھی ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے سفیر کو قتل کروا ڈالا۔ اور کچھ؟ خلیفہ نے فوراً وزیر اعظم کو طلب کیا اور بعد میں سپہ سالار بھی شامل ہو گئے اور اس کے بعد رات گئے تک صلاح مشورے ہوتے رہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ مجھے آپ کا حال تو نہیں معلوم، لیکن قاسم بہت تیاری کر رہا ہے۔ آج شام میں نے اس کو اپنے یونانی استاد کے ساتھ مشق کرتے دیکھا تھا۔ عبدالعزیز، تمہیں معلوم ہے یہ یونانی کون ہے؟ وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس چند تحائف لایا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے اس نے سلطان کے خلاف پہلی جنگ میں بہادری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا اور قاسم نے ایک معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہے۔ اور وہ واپس جا کر اب یہ کہے گا کہ بغداد کی عمرہ کے لڑکے تیغ زنی کے لیے مغرب کے استادوں کے محتاج ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کے کھیل کے لیے کسی استاد کا محتاج نہیں؟ یہ احساس سے کمتری ہمیں لے ڈوبے گا۔ اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں۔ یہ تماشا خلیفہ کے سامنے ہوگا۔ قاسم کے استاد کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ شاگرد نے بازی جیت کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی، تو کون کہہ سکتا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے بچوں کے ہاتھ پہ ہوگی؟ سالار معظم، مجھے طاہر کے متعلق اطمینان ہے۔ اگر کسی طرح شاگرد کے بعد استاد بھی میدان میں آ جائے۔ استاد کے بعد شاگرد؟ نوجوان، تم دور کے لانے میں کسی طرح ہمارے وزیر خارجہ سے کم نہیں ہو۔ آج سے تمہارا نام اپنے ذہین سالاروں کی استاد کے بعد شاگرد؟ جی، شاگرد کے بعد استاد۔
ہاں ہاں، شاگرد کے بعد استاد۔ اس نوجوان نے ہماری توقعات پوری کی تو ان دونوں کی صورت دیکھنے والی ہوگی۔ شاگرد کے بعد استاد۔ عبدالعزیز، تم نے بہت دور کی سوچی۔ اب بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئے گی۔ آج وزیر اعظم یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ کوئی قصیدہ گو شاعر آ گیا تو خلیفہ اس دلچسپ کھیل کو دیکھنے کے لیے آنے کا وعدہ بھول جائیں گے۔ عبدالعزیز، تم یہ کوشش کرنا کہ کل کوئی شاعر اس طرف کو نہ جانے پائے۔ نوجوان، تمہارے بازو تو کافی مضبوط معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر تم تیغ زنی میں اپنی صلاحیت کے بارے میں غلط اندازہ لگانے کے عادی ہو تو میرے بہترین گھوڑے تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ لوکس، کیوں طاہر، تم پریشان تو نہیں ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کاش میرا مقابلہ اس سے اتنے دوستانہ ماحول میں نہ ہوتا۔ بہت خوب عبدالعزیز، کل تم انہیں یہاں لانے سے پہلے پھر ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا۔ اب انہیں گھر چھوڑا۔ خلیفہ کے جاسوس خاص نے ابھی اطلاع دی کہ خارزم کے سرحدوں پر بغداد کا ایک جاسوس پکڑا گیا اور اس کے پاس سے ایک خط بھی ملا، اور وہ خط تو ہمارا بھیجا ہوا خط پکڑا گیا۔ خلیفہ معظم بہت پریشان، انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ وحید الدین کو فوراً طلب کیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ جاؤ اور فوراً کوتوال شہر کو بلا کر لاؤ۔ کوتوال شہر حاضر ہے جناب۔ بلاؤ۔ حکم۔ سنو، وزیر خارجہ وحید الدین آج رات جب خلیفہ سے مل کر واپس لوٹے تو اسے راستے ہی سے اٹھا لو اور اسی خاص جگہ، وہیں دجلہ کے کنارے تہ خانوں میں؟ ہاں، لیکن یہ کام نہایت خاموشی سے ہونا چاہیے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی، لیکن دروغہ زندہ اسے اطلاع دی جا چکی ہے۔ سبحان اللہ، اب تم طاہر شہید سے اچھی تلوار چلانے لگے ہو۔ خلیفۃ المسلمین، میں حضور کی اجازت سے طاہر بن یوسف کو حضور کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے۔
ताहिर बिन यूसुफ। अब्दुल अजीज, हमारा मुकाबला इन कालीनों पर होगा? ये खाली कालीन तो सिर्फ इसलिए है कि आपका मुकाबला वजीर आजम के साहबजादे से होगा। अगर यही मुकाबला शाही खानदान के किसी फर्द के साथ होता तो इस पर फूलों की सेज बिछाई जाती। आपने दूसरे नंबर पर। ये तो पूरी तैयारी करके आया। आप इसे हर वक्त इसी लिबास में देखेंगे, शायद सोता भी इसी लिबास में। आप हिम्मत करें, शागिर्द के बाद उस्ताद। लेकिन इतनी जल्दी न करना। अगर आपने ये तमाशा खुद खत्म कर दिया तो देखने वालों को मायूसी होगी। आप फिक्र न करें, देखने वालों को मायूसी नहीं होगी। शायद मुकाबला शुरू होने वाला है। मुकाबला शुरू होगा तो आपका बद्दू जिंदगी भर तलवार को हाथ लगाने का नाम नहीं लेगा। और अगर कासिम की गद बन गई तो सफिया खुदा से नेक दुआ मांगिए। और आखिर इस अजनबी के साथ आपको इस कदर हमदर्दी क्यों है? हमें एक अजनबी के साथ नहीं, उस मुजाहिद के बेटे के साथ हमदर्दी है जिसने यरूशलेम पर मुसलमानों की फतह का झंडा नस्ब करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार हासिल की थी। हम नहीं चाहते कि उसका बेटा मुस्तकबिल में अपने बाप की इस मुकद्दस अमानत का नाअहल साबित हो। और फिर कासिम इस तलवार को हासिल करके करेंगे भी क्या? क्यों? क्या वो सिपाही नहीं है? सिपाही? सिपह सलार की बेटी से पूछिए कि वो कैसा सिपाही है। ज्यादा जानना चाहे तो अब्दुल मलिक की बीवी से पूछिए। वो तो सिर्फ कालीन पर कुश्ती लड़ने वाला पहलवान है, बस। खलीफतुल मुस्लिमीन, हुजूर की इजाजत हो तो मुकाबला शुरू किया जाए। इजाजत है।
बगदाद के महजूब नौजवान ने मदीना के बच्चों के मुकाबले की दावत देकर गलती नहीं की? क्यों? गलती क्यों की? कासिम कह देते कि 50 गिनने से पहले ये खेल खत्म हो जाएगा। हर हम 300 तक गिन चुके हैं। आप ही कैसी बातें करती हैं? हमने कासिम भाई से कहा था जरा तमाशा होने देना, और वो आपके बच्चे को एक बच्चे की तरह खिला रहे हैं। हमें डर है कि जब बच्चा उन्हें खिलाना शुरू करेगा तो उनकी हालत काबिल रहम होगी। कासिम वाकई हमलों की तेजी में कमाल दिखा रहा खलीफतुल मुस्लिमीन शहजादा मुस्तनसर और उमराए बगदाद की जानिब से ताहिर बिन यूसुफ की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये नौजवान जिसने अपने आप को इस तलवार का बेहतरीन हकदार साबित किया है, दौलत अब्बासिया की भी बेहतरीन खिदमत सरअंजाम देता रहे। ताहिर बिन यूसुफ मुबारक हो ताहिर, मुबारक हो। मेरे आका ने छक्के उड़ा दिए, तोते उड़ा दिए। ख्वाजम शाह का सफीर मादिल मलिक, तुम्हारे बारे में मैंने जैसा सुना था वैसा ही पाया। सुभान अल्लाह। मैं खाकान आजम चंगेज खान का सफीर हूँ और तुम जैसे बहादुर जरी तलवार के धनी नौजवानों की कदर कर। शुक्रिया। हुजूर खलीफतुल मुस्लिमीन की इजाजत से हमारे मौजूद मेहमानों में से एक का दावा है कि दुनिया में उनसे बेहतर कोई तेगजन नहीं। शहजादा मुस्तनसर की ख्वाहिश है कि अगर ताहिर बहुत ज्यादा ना थक गए हों तो वो हमारे मौजूद मेहमान की दावत कबूल कर लें। अगर ताहिर के पास सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार है तो हमारे मौजूद मेहमान के पास शाह फ्रांस का हुजूर खलीफतुल मुस्लिमीन की इजाजत से अब मुकाबला शुरू किया जाता है। आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, मुकाबला जल्द खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। तुम फिक्र न करो अब्दुल अजीज, इसके साथ मेरा मुकाबला जल्द खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह।
ہمارے اسلحہ خانے میں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ چمکدار اور تلواریں موجود ہیں، لیکن کاش آپ جیسے چند سپاہی بھی ہوتے۔ آپ یہاں سے نہ جائیے گا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں یہاں موجود ہوں۔ سنا ہے بھائی 2 دن وزیر خارجہ روپوش ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہاں بہت پر ذرائع سے معلوم ہوا کہ وزیر خارجہ نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا تھا۔ اس بات کا علم خلیفہ کو ہے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفہ کی مرضی ضرور شامل رہی ہوگی، بالکل، ورنہ وزیر خارجہ کی کیا مجال جو اتنا بڑا قدم اٹھا سکے؟ اس سازش کے بے نقاب شاید روپوش ہو ہاں، گیا۔ واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، بڑی اچھی مزہ پتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے آپ لوگ کا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہی مقیم ہے۔ اچھا ویسے آپ غالباً مشرق کی طرف چلو۔ شہزادے معظم خادم تاخیر کی معذرت چاہتا ہے۔ سفیران گرامی اور عمائدین سلطنت، ماں حضرت ناول فرمائیے۔ اجازت؟ طاہر، میں نے تمہیں کچھ دیر کے لیے روکا تھا، بیٹھ۔ طاہر، کیا سپہ سالار نے تمہیں فوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیشکش نہیں کی؟ میں نے سنا ہے کہ ولی عہد اور شہزادہ مستنصر نے تمہاری سفارش کی تھی۔ سپہ سالار نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، اور جہاں تک شہزادہ مستنصر اور ولی عہد کا تعلق ہے تو مجھے ان کی سفارشات کا علم نہیں۔ لیکن کیا تم فوج میں جانا چاہتے ہو؟ اگر تم فوج میں جانا چاہتے ہو تو سپہ سالار سے میں خود کہہ سکتا ہوں، لیکن فوج میں زیادہ تر اعلیٰ عہدوں پر ترک فائز ہیں اور ان کے بعد ایرانیوں کا اقتدار ہے، اس لیے ایک عرب افسر کے لیے ترقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے درست فرمایا۔ وزیر خارجہ وحید الدین کے روپوش ہو جانے کے بعد سے بغداد کے خارجی معاملات بہت الجھے ہو گئے، اور ہمیں اپنے دفتر خارجہ کے لیے ہوش مند، ذہین اور قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اپنی ذہانت اور ہوش مندی کا دعویٰ تو نہیں، لیکن آپ مجھے قابل اعتماد ضرور پائیں گے۔
मैं कल ही नए वजीर खारजा मोहल्ली बिन दाऊद से बात करूंगा और मुमकिन है कि चंद एक दिन तक एक निहायत ही अहम मुहिम तुम्हारे सुपुर्द कर दी जाए। आपका इशारा कौन सी मुहिम की तरफ है? तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। बस तुम खारजम के सफीर से राब्ता कायम करने की कोशिश करो और अगर हो सके तो उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम उन लोगों में से हो जो खारजम पर तातारियों का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके ख्याल में चंगेज खान खारजम पर जरूर हमला करेगा? ताज़ा इत्तलात ये हैं कि चंगेज खान की अफवाज खारजम की शुमाली सरहद पर जमा हो रही हैं। मुमकिन है हमें यह पैगाम देना पड़े कि अगर तुमने खारजम पर हमला किया तो बगदाद की अफवाज खारजम की हिमायत के लिए मैदान में आ जाएगी। मुझे यकीन है ऐसा कोई पैगाम चंगेज खान के हौसलों को पस्त करने के लिए काफी होगा। लेकिन यह पैगाम जाएगा किस तरह? खारजम वाले बगदाद के किसी एलची को सरहद पार करके चंगेज खान की ममलकत में दाखिल होने की इजाजत नहीं देते। वाकई? हाँ, और मुझे डर है कि अगर हालत यही रही तो खारजम के साथ हमारे ताल्लुकात पहले की तरह कशीदा हो जाएंगे और फिर मुमकिन है कि हम चंगेज खान को जरूरत के वक्त मुतनब्बे भी न कर सकें। खुदा न करे कि आपके ये खदशात दुरुस्त साबित हो। इसलिए अगर खारजम के सफी के साथ तुम जैसे नौजवान की दोस्ती का फायदा उठाएं तो ये उनके और बगदाद के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। आपका क्या ख्याल है, मैं उसे दोस्त बनाने में कामयाब हो जाऊंगा? उसे सलाहुद्दीन की तलवार की बदौलत तुमसे बेहद अकीदत है, इसलिए मौके से फायदा उठाओ। तुमने मुकाबले वाले दिन उसे बहुत मुतासिर किया है। उसने सबसे पहले उठकर तुम्हें मुबारकबाद दी थी और फिर मुझे यकीन है कि तुम सल्तनत खारजम के बारे में ऐसे नेक इरादे जाहिर करके उसे अपना दोस्त बनाने में कामयाब हो जाओगे। मैं उसे अपने खुलूस से मुतासिर करने की कोशिश करूंगा और अगर आपने मुझे चंगेज खान को मुतनब्बे करने के लिए मुंतखब किया है तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती कहूंगा। अगर तुमने खारजम के सफीर का एतमाद हासिल कर लिया तो तुम्हारी तरक्की के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। और हाँ, एक बात और, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो बात हुई है मुझे उम्मीद है कि वो बाहर तक नहीं पहुंचेगी। मैं वादा करता हूं और ये वादा एक सिपाही का वादा है। मुझे इजाजत। प्रिय मालूम। ठहरिए। कौन है? आहिस्ता बोलिए। कौन हो तुम? मैं वो आपको बुला रही है, वो आपको बुला रही है। फरमाइए। तशरीफ ले गए। आपकी तारीफ? आप हमारे बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो। हम आपकी भलाई के लिए आपसे कुछ कहना जरूरी समझते हैं। इरशाद, क्या कहना चाहती हैं आप? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप कासिम से बाखबर रहिए। आपके मुतालिक उनके इरादे खतरनाक हैं। रहमदिल खातून, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में रहने वालों को मेरे बजाय कासिम से ज्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कौन है आप? आपको ये जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम यकीनन कासिम से करीब तर हैं, लेकिन हमें उनका आपके साथ उलझना बिल्कुल पसंद नहीं। वजह पूछ सकता हूँ इसकी? इसकी वजह हम नहीं जानते, लेकिन आप हम पर एतबार कीजिए। आपकी जान सख्त खतरे में है। आप अपने लिए बगदाद का कोई कोना महफूज ना समझिए। आपके मशवरे का शुक्रिया, लेकिन मेरे बाजू मेरी हिफाजत कर सकेंगे इतना मैं जानता हूँ और मैं मौत से नहीं डरता। शायद हमारे यहाँ आने की वजह यही थी कि आप मौत से नहीं डरते।
लेकिन आपको अपने बाजुओं पर इस कदर भरोसा नहीं करना चाहिए। बहादुर की तलवार पीछे से हमला करने वाले के खंजर को नहीं रोक सकती। मैं कासिम को इतना बुज़दिल नहीं समझता। कासिम बुज़दिल नहीं, लेकिन इंतकाम के जोश में वो सब कुछ कर सकते हैं। आप फिक्र न कीजिए, मैं अपने खुलूस और बेहतरीन रवैये से कासिम के इस जोश को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे ताहिर। शुक्रिया, मैं आपके मशवरे पर अमल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं। इस सवाल का जवाब हम दे चुके हैं। आप हमें एक ऐसी मुसलमान लड़की समझिए जिसके दिल में अपनी कौम के बहादुर फर्जंदों के लिए इज्जत है। आपके मुतालिक हम सिर्फ ये जानते हैं कि आप एक बहादुर बाप के बेटे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। आप भी हमारे मुतालिक ज्यादा जानने की कोशिश मत करें। अब हम चलते हैं। ख्वाजा सरा आपको आपके रास्ते पर छोड़ आएगा। फी अमान अल्लाह। आइए तशरीफ ले चलिए। चलो। नहीं आए? वाह ताहिर मियां वाह, कभी मैं आपका इंतजार करता हूं, कभी आप मेरा इंतजार करते हैं। वजीर आजम के महल में गए थे, कहीं वहां की रंगीनियां? आका ने कहा था बगदाद में बनने और बिगड़ने के सैकड़ों मौके। खैर ताहिर मियां, बिगड़ने नहीं दूंगा, छक्के छुड़ा दूंगा, तोते उड़ा दूंगा। वजारत खारजा के नायब अबू इसहाक। शुक्रिया, ये सब आप ही की कोशिशों का नतीजा है। खाका ने आजम की खिदमत में रहने की तुफैल हम भी लोगों में जौहर तलाश कर दिया करते हैं और फिर उनको मोतियों में तोल देते हैं। जरा नवाजी है आपकी। मेरे लायक कोई खिदमत? दाऊद फित्तीन होने की हद तक ज़हीन है, कहीं ये जरूरत से ज्यादा ज़हानत हमारे लिए भी खतरनाक न बन जाए। लिहाजा लाजिम है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल। मोहल्ले बिन दाऊद की जिंदगी का कोई लम्हा भी मेरी नजरों से पोशीदा नहीं रह सकता। आप मुतमईन रहिए। सफिया, क्या कर रही हैं? देख लीजिए क्या कर रहे हैं। शुक्र है आपको संवरने का ख्याल तो आया। क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? पता नहीं, लेकिन हम दो रोज से देख रहे हैं आप कुछ अजीब सी लग रही हैं। अजीब से लग रहे हैं? आपको तो ना जाने क्या क्या दिखाई देता है। चलिए ये बताइए कि आप इस वक्त हैं किस ख्याल में? बात हमसे कर रही हैं मगर ख्याल ना जाने कहाँ है। आपका ख्याल खाम है। अच्छा ये बताइए, आज दरिया की सैर को चल रही हैं? दरिया की तरफ? अरे उधर ना जाइएगा। क्यों, उधर क्या बात है? है कुछ बात, जभी तो कह रहे हैं। आखिर क्या बात है? उधर कासिम भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। कासिम अपने दोस्तों के साथ? लेकिन वो तो कहीं गए हुए थे। हाँ, सुबह से कहीं गायब थे, मगर अब वापस आ गए। चलिए सकीना, देखे तो सही वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर वहां गए तो गजब हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, हमें क्या। अच्छा, तो अब क्या इरादे हैं जनाब के? अब आप जैसा कहें।
चलिए अब्बा हुजूर के पास चलते हैं। अब्बा हुजूर के पास हम तो अभी उनसे मिलकर आए हैं। हाँ, वो आपको याद कर रहे हैं। हमको? जी हाँ, आपको। अच्छा, आप नहीं चलेंगी? हम कह तो रहे हैं कि हम अभी उनसे मिलकर आए हैं। अच्छा, फिर हम अभी उनके पास से होकर आते हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है। वो कैसे? उसने पहले ये जाहिर किया जैसे उसे वार करना आता ही नहीं, और हम भी इस ख्याल से कि मुकाबला जरा दिलचस्प रहे, जल्द खत्म न हो जाए, बेजिगरी से उस पर वार करते रहे। अच्छा, तो इस तरह से उसने आपको थका दिया, मगर आप उसके धोखे में क्यों आए? बिल्कुल इसी तरह जैसे आप आ गए थे। आप पर भी तो उसने खिलाफ तवक्को दावा बोल दिया था। नहीं, कम से कम मैं अपने मुतालिक ये बात जरूर कहूंगा कि उसने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। उसकी फतह उसकी बरतरी का नतीजा थी। बहरहाल जो कुछ भी हो, हमारी बहुत बदनामी हो गई है, इसमें कोई शुबा नहीं। और बदनामी के दाग सिर्फ खून से मिटाए जाते हैं। क्या मतलब? मतलब आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। क्या खबर लाए महमूद? खबर यह है कि वो लोग शिकार के लिए पहुंच गए हैं। और वो ठहरे कहाँ हैं? इसी दरिया पर नीचे किनारे की तरफ, यहाँ से तकरीबन 5 कोस दूर। तुमने अपनी आंखों से देखा है उन्हें? हाँ। वो तादाद में कितने हैं? वो कुल 8 हैं। 8? कौन कौन? अब्दुल अजीज, अब्दुल मलिक, अफजल और मुबारक को तो मैं पहचानता हूँ। बाकी चंद फौजी हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। हाँ, उनमें ताहिर का एक नौकर भी है। ताहिर का एक नौकर भी है। अच्छा, ये बताओ कि जब तुमने उन्हें देखा तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त? शिकार खेल रहे थे। दिन भर शिकार खेलेंगे और रात को गधों की नींद सो जाएंगे। अच्छा, ये बताओ कि हमें जाना घोड़ों पर मुनासिब रहेगा या कश्तियों? मेरे ख्याल में घोड़ों पे जाने से बात राज में नहीं रह सकेगी, और कश्तियों पर रातों रात हम लोग वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ उस्ताद मुअज्जम, अब आप फरमाइए, आपका क्या इरादा है? हमारे साथ चलेंगे या नहीं? मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो कुछ आप करना चाहते हैं वो बहादुरों की रवायत के खिलाफ है। इसमें बहादुरी के खिलाफ कौन सी बात है? कम से कम सोए हुए दुश्मन पर हमला करने के लिए मेरी तलवार बेनियाम ना होगी। ना 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 ना, आप बहुत गलत समझे उस्ताद मौसम। हम तो उन्हें जगा कर, मुंह हाथ धुला कर, मुसल्लह होकर मुकाबला करने की दावत देंगे। और अगर फिर भी वो मुकाबला किए बगैर भाग जाएं, तो फिर हमारी भी ये ख्वाहिश नहीं है कि हम बिला वजह उनके खून से अपने हाथ रंगे। क्या आपके अब्बाजान को आपके इस मंसूबे की खबर है? शायद वो इसे पसंद न करें। हाँ, अब्बाजान को अगर हमारे इरादों का इल्म हो गया तो शायद वो अपनी मसलहतों के पेश नज़र इसे पसंद न फरमाएं। लेकिन जब हम उन्हें अपनी कामयाबी की खुशखबरी सुनाएंगे, तब वो आप सबको अपने दस्तरखान पर यकीनन दावत देंगे। आप कुछ भी हो, मैं आपके साथ हूँ। याद रखिए, ताहिर का बगदाद से पूछ करके चले जाना ही हमारे मुफाद में है। उसने सिपह सालार के खाकान आजम ने कुछ कहा? खान आजम बिल्कुल खामोश है, मगर उनकी आंखें
की आंखें आग बरसा रही सोताई बहादुर। खाने आजम सफीर के कत्ल की खबर के बाद से बिल्कुल खामोश है। सोना, खाना, हंसना, बोलना सब कुछ अपने ऊपर हराम कर रखा है। सिर्फ कोमिस पर गुजारा है। खाने आजम को सफीर के कत्ल की बेइज्जती का बहुत मलाल है। मलाल नहीं, जलाल कहो। खाकान आजम के लिए अल्फाज बेमैनी है। ये खामोशी बहुत बड़े तूफान को आवाज दी। कहर के तूफान को, और जमशाह ने कहर के तूफान को ललकारा है। मेरी आंखें फिर कटे हुए सरों के अजीम शान मीनार देख रही है। मेरे कानों में मकतूलों की चीखो पुकार फिर से गूंजने लगी है। होगा तू खाने आजम का मुंह चढ़ा क्या? खाने आजम से कह हमारी तलवारें खून के समंदर में तैरने के लिए मचल रही हूं। खाने आजम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। इंतजार। सुनो, पहाड़ों की दूसरी तरफ इंसानी सरों की फसल पक के तैयार हो रही है। इस फसल को काटने की तैयारियां शुरू कर दो। अपने घोड़े और मवेशी चरागाहों में हाँक दो ताकि वो खा पी कर खूब तनुमंद हो जाए। शिकारियों को हुक्म दिया जाता है कि वो शिकारगाहों में दूर दूर तक फैल जाए ताकि जब हमला शुरू हो तो बहादुरों के थैले गोश्त से खाली न होने पाए। औरतों के लिए हुक्म है कि वो बहादुरों के लिए कोमीस और कोमीस के थैले तैयार करना शुरू कर दें। लोहारों की भट्टियों में आग तेज कर दी जाए ताकि नया असलहा ढल सके। खाकान का हुक्म है कि अपनी तलवारों की धारों को तेज कर लो। बगदाद का पैगाम आने तक इंसानी सरों की फसल पक के तैयार हो चुकी होगी। उन्हें सिर्फ बगदाद के पैगाम का इंतजार है। क्या लिखा अबू साहब? जल्दी। हाँ। पढ़ के सुनाओ अबू इसाक। लम्हा। खलीफाए बगदाद का असल पैगाम ये है कि खाने तातार खारजम पर हमला जरूर करे। अमीरुल मोमिनीन इस जंग में गैर जानिबदार होकर से अपनी दोस्ती का बैयन सबूत पेश करेंगे। ताहिर वाला मकतूब खारजम की सरहदों से गुजरने के लिए लिखवाया था। ठीक ठीक। हाँ हाँ।
चलो मुखलिस वजीरे खारजा खारजा ममलुकते अब्बासिया बगदाद दस्तखत तस्दीक हटो अबू इसाक अब तुम लोगों को अपने सर अवाम की नजरों से पोशीदा रखने हैं और वैसे भी सर ढांपे रखने पर कोई एतराज नहीं करेगा। रमजान का महीना जो है और तुम दोनों जिस काम के लिए जा रहे हो, यानी खाकान आजम चंगेज खान के कहर से मुसलमानों को महफूज रखने का काम, मुसलमानों के जानो माल को महफूज रखना भी तो बहुत बड़ी इबादत है। ताहिर और उसके साथी इस मुहिम के टल जाने की वजह से मशकूक हो गए। आप इसकी फिक्र मत करें, मैं सबको संभालूंगा। अगर तुम इस मुहिम में कामयाब हो गए अबू इसाक तो माला माल कर दिए जाओगे, खाकाने आजम की नजरों में आ जाओगे। ज़हे नसीब इज्जत अफजाई फरमाई है। और ये है निगरां कहवा खाने के। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन जगह है। इस तरफ तशरीफ ले आइए। उमरा और बाहैसियत हजरात के लिए ये जगह मखसूस है। खूब, बहुत खूब। अच्छा नहीं नहीं, ये बात खाकाने आजम ने कही। तोहफे ईद खाकाने आजम की तरफ से। नहीं, रहने दो भी। सफिया बीबी, गुस्ल का पानी तैयार है। तुम चलो, हम अभी आते हैं। सफिया
सफिया, सफिया, ये क्या? आप अभी तक तैयार नहीं? जल्दी कीजिए, कसरे खिलाफत पहुंचने में देर हो जाएगी। अभी बहुत वक्त है, और अगर हम ना भी गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? खैरियत? बड़ी उदास लग रही है। उदास? नहीं तो बस फिर सोच में पड़ गई। क्या सोच रही हैं? सकीना, आज हम सुबह से कई बार कौवे की करख्त आवाज सुन चुके हैं। भला भला इसका क्या शुगुन है? कौवे की आवाज? कोई जुदा होने वाला है, समझी? क्या? वो ये वो ईद के दिन जाने वाला था ना, और आज ईद का दिन। नहीं सकीना, ये बात नहीं है। तो फिर ये बेकरारी बेवजह तो नहीं? सकीना, हमें डर है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार का अमीन कहीं चंगेज खान की भेंट न चढ़ जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा देखिए, बहुत देर हो रही है। अब हुजूर को सलाम करने भी जाना है, और फिर कसरे खिलाफत भी। जल्दी कीजिएगा। सकीना, आपको क्या मालूम कि वो पत्तू हमारे लिए क्या बन चुका है? ये तो शायद उस पत्तू को भी ना मालूम हो कि हम उसके लिए कितने बेचैन हैं, कितने बेचैन हैं, कितने बेचैन हैं। और अब आखिर में ताहिर बिन यूसुफ के लिए अमीरुल मोमिनीन की जानिब से ये खिलत। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बहुत अच्छी नजराने भी। ये नहीं देखते ऐसे। हुजूर अमीरुल मोमिनीन, खादिम की जानिब से ईद का ये हदिया तहनीत कबूल फरमाइए। मुबारक सलाम। मैं खाकान आजम की तरफ से खलीफतुल मुस्लिमीन की खिदमत में एक हसीन तोहफा पेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
अमीरुल मोमिनीन, आपकी इजाजत से ताहिर बिन यूसुफ कल सुबह सल्तनत तातार रवाना हो रहे हैं। हमें यकीन है आपका मुरत्तब करदा लाए अमल कामयाबी से हमकिनार होगा। यकीनन अमीरुल मोमिनीन। ताहिर, हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। आप? सुना है आप सुबह जा रहे हैं। जी हाँ, बारी ताला ने मुझे पहली बार ऐसा मौका अता किया है कि मैं इस्लाम की कुछ। आपको ये शहादत मुबारक होता है। शुक्रिया। एक बात पूछें? पूछिए। आपको चंगेज खां के रूबरू जाते हुए डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? सुना है वो बहुत जालिम और जाबिर इंसान है। उसके रूबरू कलमा हक का मजा तभी है जब मद्दे मुकाबिल जालिम और जाबिर हो सफिया। इसी का नाम जिहाद है। फिर भी एहतियात लाजिम है ताहिर। आपके ख्याल में मुझे चंगेज खान के सामने कलमा हक नहीं कहना चाहिए? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उसके सामने कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे वो नाराज हो जाए और ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, और खुदकुशी इस्लाम में मना है। आपने मुझे कायल कर दिया है सफिया। आप मुतमईन रहें, मैं एहतियात से काम लूंगा। अब इजाजत चाहिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जिस अज़्म को लेके जा रहे हैं उसमें हमारी याद भी शामिल कर लीजिए। इस वक्त एक ही तीर है, इसे अपने तरकश में रख लीजिएगा। शायद कोई ऐसा लम्हा आ जाए जब इसे देखकर आपको बगदाद याद आ जाए। सिर्फ एक तीर? आप जैसे बहादुर और मशाक शिकारी के लिए एक वक्त में एक ही तीर काफी रहता है। फी अमान अल्लाह सफिया। फी अमान अल्लाह। ताहिर, अब तो क्या हमें खुद भी नहीं मालूम कि आप हमारे लिए क्या बन चुके हैं। ताहिर, नहीं, हम बगदाद के खलीफा पे एतबार नहीं कर सकते। इमादुल मुल्क ने बगदाद के एलची ताहिर बिन यूसुफ की तारीफ की है। वो एक मुजाहिद का बेटा है और सुल्तान सलाउद्दीन की तलवार उसकी सबसे बड़ी सिफारिश है। हम उस पर एतबार कर सकते हैं। अलीजा, मुमकिन है खलीफा के दिल में ऐसी कोई बात हो, लेकिन सुल्तान मुअज्जम बगदाद के लोगों के जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। का कोई आदमी ऐसा नहीं जो खारजम से मोहब्बत न करता हो। तुम अभी बच्चे हो, तुम आवाम के जज्बात तो समझ सकते हो, लेकिन हुक्मरानों के दिलों की बात नहीं। तो क्या सुल्तान मुअज्जम ताहिर बिन यूसुफ को चंगेज खान के पास जाने की इजाजत नहीं देंगे? नहीं, हम ऐसा करना नहीं चाहते।
लेकिन सरहदी चौकियों की तरफ से पूरी पूरी एहतियात बरती जाएगी, और एहतियात का मतलब तुम समझते हो। हुक्म की तामील होगी, हर चौकी पर उनकी तलाशी ली जाएगी। वो तो सब कुछ होगा, लेकिन खलीफा नासिर ने अगर ताहिर बिन यूसुफ को किसी साजिश के लिए इस्तेमाल कर लिया तो इसका हमें बहुत दुख होगा। सुल्तान मुअज्जम, खुदा न करे ऐसा हो, वरना ये मुसलमानों की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। इमादुल मुल्क की सिफारिश और सुल्तान सलाउद्दीन की तलवार, ये दो ऐसी बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से इस सिफारत को शक व शुबे के बावजूद हम अपनी सरहदें अबूर करने की इजाजत दे रहे हैं, वरना इस सिफारत की जगह ख्वारज़म के किसी कैद खाने में होती। आपका नाम ताहिर बिन यूसुफ है? हमें आपकी आमद की इत्तला मिल चुकी है और हमने आपके लिए पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन सुल्तान मुअज्जम के हुक्म के मुताबिक आपके और आपके साथियों की पूरी तलाशी ली जाएगी। बहुत बेहतर। अब आप जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ अबू इसहाक। खाकान आजम चंगेज खान की सरहदें बगदाद के सफीर को खुश आमदेद कहती हैं। हम खाकान आजम चंगेज खान के जज्बे खैर सगाली की कद्र करते हैं। मुझे सौबताई कहते हैं और मैं खाकान आजम का सिपह सालार हूँ। मुझे खान आजम ने बनत से रफी साहब के इस्तकबाल के लिए भेजा है ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ न हो। हम खाकान आजम के मशहूर हैं। खाकान आजम खलीफा बगदाद की सफारत से मुलाकात के बेहद मुश्ताक है। आइए, हमारे बरकफ्तार घोड़े आपके मुंतज़िर। अभी इसी वक्त? खाकान आजम के अहकामात यही है कि सफारत को बिला ताखिर उनकी खिदमत में पेश किया जाए। अगर खाकान आजम की यही मर्जी है तो चलिए। आइए। आओ अबू इसहाक। आपने खोपड़ियों के ये मीनार देखे? जी हाँ, देख रहा हूं। लगता है आपके खाकान आजम को इंसानी खोपड़ियों से खास दिलचस्पी है। ये सिर्फ बड़े सरदारों की खोपड़ियां हैं। इन्हें इनकी हैसियत के मुताबिक जगह दी गई है। निचले तबके की खोपड़ियां यहां नहीं लाई गई। बहुत खूब। तो गोया आपके खाकान आजम इंसानी खोपड़ियों में भी खास फर्क करते हैं। खान आजम चाहते हैं कि हर चीज उसकी शान के मुताबिक हो। ये क्या है? कमीज। ये क्या होता है?
ہم گھوڑی کے دودھ کو چمڑے کی تھیلی میں ڈال کے پھینکتے ہیں. یہ انتہائی گرم، مقوی اور نشاور ہوتا ہے. شکریہ. صوبدائی بہادر، آپ کے خاقان اعظم انسانی کھوپڑیوں کا محل کیوں نہیں بنا لیتے؟ شمال مغرب اور شمال مشرق کے شہروں میں کھوپڑیوں کے کئی انبار بیکار پڑے ہیں. اگر انسانی کھوپڑیاں اینٹوں کا کام دے سکتی تو انسانی کھوپڑیوں کا محل بنانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا. ابو اسحاق، آپ یہاں؟ میں آپ کو باہر تلاش کر رہا تھا. جمیل اور کمال کہاں ہیں؟ وہ دونوں تو نماز پڑھنے کے لیے گئے. الحمدللہ. میں مجھے یقین ہے آپ میری بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے. ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا. بیٹھیں. ہم لوگ تاتاریوں کی حدود میں داخل ہوئے ہیں. آپ کا رویہ کچھ بدلا ہوا ہے. اس میں کوئی مصلحت ہے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم تاتاریوں سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف نہیں ہوتے جا رہے ہیں. ہم بے تکلف ہوتے جا رہے ہیں یا وہ ہم سے زیادہ بے تکلف ہوتے جا رہے ہیں؟ ابو اسحاق، آپ نے مجھ سے یہ کیوں چھپائے رکھا کہ آپ تاتاریوں کی زبان سے واقف ہیں؟ اس میں چھپانے کی کون سی بات تھی؟ کوئی دوسری زبان جانا گناہ تو نہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں یقیناً آپ کو بتا دیتا. نہ، میرا مقصد یہ نہیں تھا. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وزیر اعظم کو اس بات کا علم تھا کہ آپ تاتاریوں کی زبان سے بھی واقف ہیں؟ وزیر اعظم مجھ جیسے آدمی کے متعلق کیوں جانیں گے؟ ویسے اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں یہ زبان نہیں بولوں گا. نہ، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں ابو اسحاق کہ اگر کوئی بغداد کے بارے میں آپ سے کوئی سوال کرے تو میں سمجھتا ہوں آپ میں بہت سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہوں. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ابو اسحاق. خاقان اعظم سے ملاقات کے لیے ہمیں اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ خلیفہ بغداد کی طرف سے خاقان اعظم چنگیز خان کے نام. ہمارا اصل پیغام یہ ہے کہ خاقان اعظم خوارزم شاہ پر ضرور حملہ کرے. امیر المومنین اس جنگ میں قطعی غیر جانبدار ہو کر خاقان تاتار سے اپنی دوستی کا بیان ثبوت پیش کریں گے. طاہر والا مکتوب صرف خوارزم کی سرحدوں سے گزرنے کے لیے لکھوایا گیا تھا. مخلص وزیر خارجہ مملکت عباسیہ بغداد. تصدیق سفیر چنگیز خان. تو یہ خلیفہ بغداد کا پیغام اس کے سر پر بھی وہی تحریر خان اعظم. خاقان اعظم، کل صبح بغداد کے سفیر سے ملاقات ہوگی. سودائی، خاقان اعظم، خوارزم شاہ نے ہمارے قہر کو للکارا تھا. سودائی سن، طبل جنگ بجنا شروع ہو گیا. اپنے تیز رفتار قاصدوں کو یہ پیغام لکھ کے خوارزم شاہ کے پاس فوراً بھیج دے.
मुअज्जम शाह, तूने जंग का इंतखाब किया था, तो अब जंग ही होगी। और इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा ये सिर्फ आसमान लाजवान को मालूम है। हमें यकीन है कि खलीफा बगदाद के सफीर हमारी दावत से लुत्फानंदोज हुए। हम बगदाद के सफीर को अलविदा कहते हैं और यकीन करते हैं कि खलीफा बगदाद तक हमारी दोस्ती का पैगाम पहुंच जाए। ताहिर बिन यूसुफ, हमें उम्मीद है खाकान आजम के बेटों से मिलकर आपने खुशी महसूस की। मुझे यकीनन आप सबसे मिलकर बेतहाशा खुशी महसूस हुई। मैंने आपके बारे में जैसा सुना था आप सबको वैसा ही पाया। मेरा ख्याल ये था कि आपसे भी दरबार में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन न जाने क्यों खाकान आजम ने मुझे दरबार में बुलाने के बजाय। ताहिर बिन यूसुफ, आपको इस मुलाकात पर खुश होना चाहिए। बहुत कम लोगों को ऐसी मुलाकात नसीब होती है। आप यकीनन खलीफा का कोई बहुत अहम पैगाम लेकर आए होंगे। मुझे बगदाद देखने का बहुत शौक है। सुना है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। मुझे भी आपका हमारे शहर के बारे में क्या ख्याल है? हर कौम के शहर उनके किरदार और मिजाज का इनादार होते हैं। आपके शहर को देखकर भी मैंने आपकी कौम के बारे में बहुत कुछ जाना है। हमारा शहर यकीनन बगदाद से ज्यादा खूबसूरत नहीं, लेकिन हमारी ताकत के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप बगदाद की खूबसूरती की शोहरत से उसकी ताकत के बारे में गलत अंदाजा कायम न करें। आपने हमारे सिपाहियों की तादाद देखी है? पूछ सकता हूँ बगदाद के पास कितनी फौज है? आपने हमारे खेल में तो देखे। मुझे खुशी होगी अगर आप हमें बगदाद के कलों के बारे में कुछ पता है। माफी चाहता हूँ, मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आपको शायद गलतफहमी है। हमने ये सवालात किसी बुरे इरादे से नहीं पूछे। ताहिर बिन यूसुफ, बगदाद के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हम अपने दोस्तों के मुताल्लिक जरूरी मालूमात हासिल करना अपना फर्ज समझते हैं। मैं आपको यह भी यकीन दिलाता हूं कि बाहर की दुनिया के बारे में हमारी मालूमात ये नाक़िस नहीं है। ये देखिए, शायद आपने बगदाद का इससे ज्यादा मुकम्मल नक्शा पहले कभी ना देखा। मुझे बहुत हैरत, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ पूरी बेतकलीफी से बातें करें। हमारे ख्याल में काफी गुफ्तगू हो चुकी। बगदाद के सफीर को रवानगी की तैयारी भी करनी है। इन्हें सुबह रवाना होना है। अच्छा, अब रुखसत। हम बहरहाल बगदाद के दोस्त हैं। अगर आपको ये नक्शा पसंद हो तो इसे अपने पास रख सकते हैं। वैसे हमारे पास और भी नक्शे मौजूद हैं। ये हमें दे दीजिए। शुक्रिया। बगदाद का नक्शा मेरे दिल पर नक्श है। शहजादा मुअज्जम, हुक्म के मुताबिक हर सरहदी चौकी पर सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी गई और कासिदों के लिए तेज रफ्तार घोड़े मुहैया कर दिए गए हैं। सरहद पार की हर नक्ल और हरकत हमारे इल्म में होनी चाहिए अल्बास खान। इस वक्त की जरा सी कोताही आइंदा के हालात पर असरअंदाज हो सकती है।
शहजादा मुअज्जम अमीनुल मुल्क आए और बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। बुलाओ। कहिए अमीनुल मुल्क, सरहदों का जायजा ले आए आप? शहजादा आली वकार, सरहदी कलों पर हमारी फौजें मुस्तैद हैं और दिफाई इंतजामात निहायत मुस्तहकम हैं। अमीनुल मुल्क, सुल्तान मुअज्जम की नाक़िबत अंदेशी ने हमें तारीफ के उस दोराहे पर ला खड़ा किया है जहां से एक रास्ता तबाही की तरफ भी जाता है। हमें अपनी तमाम कुव्वत, हिम्मत और सलाहियत को बरूए कार लाना है, वरना। अल्बास खान, जाओ देखो कौन आया है। सरहदी चौकी का कासिद तेज रफ्तार तातारी सवारों से चंगेज खान का ये मरासला इस पैगाम के साथ लाया है कि उसे फौरन सुल्तान की खिदमत में रवाना कर दिया जाए। अमीनुल मुल्क, तबले जंग पर चोट पड़ गई। चंगेज खान की तरफ से ऐलान जंग हो गया। शहजादा मुअज्जम, यानी खलीफा के उस पैगाम के बावजूद? अमीनुल मुल्क, अब ये सोचना बेकार है कि बगदाद का पैगाम क्या था। देखना यह है कि चंगेज खान का पैगाम क्या है। और चंगेज खान का पैगाम है कि तारीख के सफात पर कौमों की तकदीर के फैसले तलवार की नोक से लिखे जाते हैं। बगदादी सफीर के बारे में क्या हुक्म है? अगर वो वापस हो तो उसे पन्ने रोक लिया जाए। सुल्तान मुअज्जम बगदाद के पैगाम का असल मफहूम जानना चाहेंगे। हमारे लिए क्या हुक्म है शहजादा मुअज्जम? अल्बास खान, तुम रास्ते के कलों को खबरदार करते हुए समरकंद पहुंचो। अमीनुल मुल्क, आप सरहदों की मुस्तादी के फराइज अंजाम देते रहेंगे और हम सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में जंग का ये दावतनामा लेकर खुद जाएंगे। हमें बगदाद से यही उम्मीद थी। खलीफा नासिर ने यकीनन किसी खुफिया जरिए से चंगेज खान को अपनी अदम मुदाखलत का यकीन दिलाया होगा, वरना उस वहशी की इतनी जुर्रत न होती। बहरहाल अब ईंट का जवाब पत्थर से ही देना पड़ेगा। सुल्तान मुअज्जम। वजीर आजम, सुल्तान मुअज्जम, अहकामात पढ़कर सुनाए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सरहदी कलों के लिए अहकामात जारी किए जाते हैं कि वो अपनी अपनी हिफाजत का पूरा पूरा इंतजाम रखें। तमाम कलादारों को ये यकीन दिलाया जाता है कि जरूरत के वक्त उनकी कुमक के लिए तूफानी दस्ते फिलफौर रवाना कर दिए जाएंगे। गैर खान अनालजक की मदद के लिए 10,000, कोकन में तैमूर मलिक के लिए 10,000, बुखारा के लिए 30,000 और इसी तरह समरकंद और दूसरे मकामात के लिए 10-10 हजार सिपाह का इंतजाम किया जा रहा है। आलीजा, अगर इजाजत हो तो बंदा कुछ अर्ज करे। कहो, क्या कहना चाहते हो? सुल्तान मुअज्जम, मेरे ख्याल में अपनी ताकत को मुंतशिर करना नामुनासिब है। चंगेज खान की तूफानी यलगार को रोकने के लिए अपनी तमाम तर ताकत को मुत्तहद करके सरहदों पर मुतय्यन करना बहुत जरूरी है, वरना हो सकता है तातारियों को हमारे दिफाई हिसार के पीछे आ जाने का मौका मिल जाए। बहुत नुकसानदेह होगा। सुल्तान मुअज्जम। जलाल, हम तुम्हारी सलाहियतों के मोतरफ होने के बावजूद तुम्हारे मशवरों से बहुत नाला है। आलीजा, बंदा तो सिर्फ पहले हमारी हिकमत अमली को सुन तो लिया होता, उसके बाद अपना मशवरा भी दे लेते। इरशाद सुल्तान अली वकार। हम चाहते हैं कि अपने हर किले में सामान्य रसद और सिपाह की तादाद बढ़ाकर
اس کو چٹان کی طرح سے مضبوط کر دیا جائے تاکہ تاتاری سپاہ ان سے سر ٹکرا ٹکرا کر پست حوصلہ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اپنے بقایا طوفانی لشکر کو اپنی قیادت میں لے کر چنگیز خان کی تھکی ہاری فوج کی صفوں میں قیامت برپا کر کے اسے قرا کرم واپس لوٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ گستاخی معاف علی جا، میں پھر عرض کروں گا کہ اپنی طاقت کو منتشر مت کیجیے۔ سلطان معظم، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ کہو۔ شہزادے جلال الدین کے مشورے کی روشنی میں جنگی حکمت عملی مرتب کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تمہارے مشورے ناقابل قبول ہیں، وہ اس لیے کہ چنگیز خان کے جنگ کے خطرے کے پیش نظر ہم نے یہ منصوبہ بہت سوچ سمجھ کر مرتب کیا تھا، اور ہم اپنے ولی عہد سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے احکامات پر آنکھ بند کر کے عمل کرے گا۔ سلطان معظم، بندہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا، آپ کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتا، لیکن بس ہم کچھ اور سننا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم، سلطان اعظم، قلعےداروں کو احکامات روانہ کر دیے جائیں۔ سالار اعظم، سلطان علی، کوچ کے انتظامات کیے جائیں۔ جس طرح آسمان لازوال پر ایک سورج کی حکومت ہے، اسی طرح اس روئے زمین پر صرف ایک خاقان کی حکومت ہوگی، تینگری تینگری تینگری، مقدس یاسا مقدس یاسا مقدس یاسا یلغا۔ اعظم، جاسوسوں کے مطابق علاؤدین نے اپنے ہر قلعے پر حفاظتی فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے اور دفاعی انتظامات کو مضبوط کر دیا ہے۔ خان اعظم، معلوم ہوتا ہے علاؤدین خاصا عزم کار ہے، وہ ہمارے طریق جنگ کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے کہ ہم کسی ایک جگہ فیصلہ کن جنگ نہیں لڑتے۔ خان اعظم، کیا طریقہ جنگ تبدیل کر دیا جائے گا کہ اب ہماری حکمت عملی کچھ اور ہوگی؟ نہیں، طریقہ جنگ وہی ہوگا، صرف انداز بدل جائے گا۔ چغتائی، خان اعظم، سب سے پہلے تو اطرار پہ حملہ کرے گا، اپنے ساتھ 3 لاکھ سوار لے کر جا اور اطرار کے قلعے کو گھیر لے، لیکن تیری فوجوں کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ تیری فوج دن تک مسلسل قلعے کے سامنے اترتی رہے تاکہ تیری ہیبت قلعے والوں کی طاری ہو جائے۔ اور صوبدائی تیری رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ خان اعظم، اس اعزاز کے لیے غلام شکر گزار۔ جو جی خان اعظم، تو دیوی لویان کے ساتھ 1 لاکھ سوار لے کے نکل اور اچانک کشلک اور توق تغان پر حملہ کر کے ان کے فتنے کو ختم کر دے، ورنہ خوارزم سے لمبی جنگ کی صورت میں وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد خوارزم کی سرحدوں میں تباہی اور بربادی کا طوفان مچا دے۔ خاقان اعظم، اس غلام کی تلوار بھی نیام میں مچل رہی ہے۔ خان اعظم، یہ غلام بھی اپنا سر کٹانے کے لیے بے چین ہے۔ اولتائی، خان اعظم، تو چغتائی اور سبتائی کو اپنے ساتھ لے کے نکال اور خوارزم کی سرحدوں میں سروں کے کٹے ہوئے اتنے اونچے مینار قائم کر دے کہ خوارزم کی رعایا ہماری ہیبت سے کانپ اٹھے۔
تمہاری ان کارگزاریوں کا نتیجہ دیکھنے کے بعد ہم اور دم سے بھرپور جنگ کا فیصلہ کریں گے۔ اعظم کی سرحدوں پہ واپسی کی خوش آمدید۔ شکریہ۔ عامل خوخن کی خواہش ہے کہ آپ ایک رات ان کے یہاں مہمان رہیں۔ بخوشی۔ تو آئیے کچھ دیر آرام کر لیں، پھر مہمان خانے چلے چلیں گے۔ آ جاؤ ابو اسحاق جمیل۔ کوتوال شہر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بھیج دو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ اسے دیکھیے، شاید اس میں کوئی ایسی چیز ہو جسے آپ پہچانتے ہو۔ اس میں تو ہیرے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ کے ایک ملازم سے ملے۔ میرے ملازم سے؟ آپ کا ملازم ابھی ایک تاجر کی دکان پر ایک ہیرا دکھا کر اسے قیمت دریافت کر رہا تھا۔ اس تاجر کو شک ہوا، اس نے مجھے آ کر بتایا، چنانچہ میں اسے پکڑ کر کوتوالی لے گیا، جہاں اس تھیلی میں سے مزید ہیرے۔ آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ اسے یہ ہیرے کہاں سے ملے؟ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ وہ اپنا نام کمال بتاتا ہے۔ کمال؟ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ ضرور، تشریف لائیے۔ پہچانے آپ؟ پہچانا۔ اسے میں آپ کی ضمانت پر چھوڑتا ہوں۔ کھول دو۔ یہ ہیرے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ مجھے یہ تاتاریوں کے خیمے سے ملے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں انہیں تاتاریوں کو واپس کر دوں گا۔ نہیں نہیں، یہ میرے۔ تمہارے ہیں تو تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کس نے دیے تمہیں؟ کسی نے نہیں، مجھے راستے سے ملے۔ راستے سے ملے؟ سچ سچ بتا، ورنہ میں پھر غلط بات۔ مجھے چنگیز خان کے ایک نوکر نے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر پر کالک لگانے سے پہلے تم چنگیز خان سے مل کر آئے تھے؟ نہیں، ہم اس سے نہیں ملے۔ نہیں ملے؟ باہر آؤ۔ اپنے سر پہ سے یہ اتار دو۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا اپنے سر پہ سے اس کو اتار دو۔ اتار دو اپنے سر سے۔ خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو، ابو اسحاق مجھے چاند سے مار ڈالے گا۔ اور مت کرو۔ خدا بندہ، کیا بغداد سے عالم اسلام کو خون کے سمندر میں غسل دینے کی سازش مکمل ہو چکی ہے؟ کیا مجھے اس ناپاک مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا؟ میرے ساتھ میری سمجھ میں نہیں آتا نا تم لوگوں کے ساتھ کیا شروع کریں۔ تم لوگ ایسی غیر ذمہ دار حرکتیں کرتے ہی کیوں؟ جدھر جی چاہتا ہے تم منہ اٹھا کے چل دیتے ہو۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی تو صرف تمہاری وجہ سے آئی۔ کیا بات ہے ابو اسحاق، تم بہت خفا ہو؟ جی آپ ہی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ کدھر تشریف لے گئے تھے؟ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ بہت پریشان؟ آج کچھ زیادہ ہی پریشان دکھائی دے رہے ہو ابو اسحاق۔ مجھے اپنا سر دکھاؤ جمیل۔ بہت سردی ہے سرکار، بہت ٹھنڈ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے اپنا سر دکھاؤ جمیل۔ میں امامہ نہیں اتاروں گا، مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بڑی احتیاط کے باوجود میرے سر سے روغن اتر گیا ہے۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، روغن کی تم فکر نہ کرو۔
बगदाद में स्याह रोगन की कमी नहीं है। आज सर साफ कर लो, बगदाद जाकर नई स्याही मल लेना। तुमने बहुत दिन से सर नहीं धोया तो आप सब कुछ जान गए। बैठ जाओ अबू इसाक। तुम्हारा जोश और खरोश मुझे अपनी राय बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता। गद्दार बुज़दिल होते हैं अबू इसाक। सल्तनत खारज़म के बारे में तुम्हारे राज बहुत अहम हैं। लेकिन मेरे साथ आप तुम खामोश हो। आप और हम सब खलीफा के खिदमतगार हैं। जिस दयानतदारी से आप अपना फर्ज पूरा करते हैं उसी दयानतदारी से हम अपना फर्ज। तुम झूठ बोलते हो अबू इसाक। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वजीर खारजा की साजिश में खलीफा भी शरीक थे। क्या ये बेहतर ना होगा कि कोई राय कायम करने से पहले आप बगदाद पहुंचकर खलीफा से पूछें उनकी राय? आप खारजम से इनाम के लालच में हमें फंसाकर खुद नहीं बच सकते। आपने खलीफा से इनाम हासिल करने के लिए हमें अपने नापाक इरादों में मुलव्वस किया। अबू इसाक आपने, और अब खारजम से इनाम के लालच में आप हमें फरोख्त कर रहे हैं। अबू इसाक ज़लील इंसान, तू ये साबित करना चाहता है कि मैं भी तेरी नापाक साजिश में शरीक था। इन सबको गिरफ्तार कर लो। ओ, तो अबू इसाक ने आपको दरवाजे में खड़ा देखकर अपना लहजा तब्दील किया था। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। यकीन कीजिए इन सब बातों के बावजूद मुझे आपके बारे में अपनी राय बदलते हुए इंतहाई दुख होता है। मुझे आप जहां चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में कोई राय कायम करने से पहले आप मुझे कुछ कहने का मौका जरूर दीजिएगा। अगर आप अपने इन साथियों के इल्जामात की तरदीद कर सकें तो मुझे इंतहाई मसरत होगी, लेकिन ऐसे संगीन मुकदमात का फैसला सादिर फरमा सकते हैं। आइए आप मेरे साथ। इन सबको गिरफ्तार कर लो। आप लोग हमारे साथ आइए। सफिया, सफिया, क्या मैं पूछ सकता हूं ये बेकरारी कैसी? देखो सफिया, खामखा अपने आप को रोक ना लगाओ। सफिया, हम दोनों के रास्ते जुदा हैं, और ये भी तो हो सकता है कि मैं जिस मुहिम पर भेजा गया हूं उससे वापस ही न लौटूं। अल्लाह ना करे। वैसे भी मैं एक अरब हूं, बद्दू, और हम बद्दू लोग पैदाइशी खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश का क्या भरोसा? आए आए, ना आए ना आए। सफिया, क्या वाकई आपको ताहिर का इंतजार है? खाना बदोश का क्या इंतजार? इंतजार तो है, मगर खाना बदोश का क्या भरोसा? और फिर वो तो वैसे भी हमारे इंतजार से लाइल्म है, लाइल्म है, लाइल्म है, लाइल्म है। सुल्तान मौसम, जासूसों ने इत्तला पहुंचाई है कि तातारियों ने सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर दी है और छोटे छोटे हमले होने लगे। सुल्तान मौसम, यकीन है कि बड़ा हमला बहुत जल्द हो जाएगा। हम उस हमले की बड़ी बेचैनी से मुंतजर हैं। चंगेज खान हमला तो करे, शिकस्त को हम उसका मुकद्दर बना देंगे। सुल्तान मौसम, चंगेज खान की कुव्वत का अंदाजा लगाने में आप शदीद गलती कर रहे हैं। गलती हम नहीं, तुम कर रहे हो जलाली। तुम उन वहशियों से जरूरत से ज्यादा खाइफ मालूम होते हो, क्यों? दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए सुल्तान मुअज्जम। मसलहत अंदेशी का तकाजा भी यही है। हमें तुम्हारी तशवीश पे हैरत, मसलहत अंदेशी, उसका जवाब हमारे पास सिर्फ एक है, वो ये कि 2 लाख सिपाहियों के साथ चंगेज खान की तरफ पेशकदमी की जाए और इससे पहले कि वो हम पर हमलावर हो, हमारी तरफ से उस पर हमला कर दिया जाए।
ताज़ीमात सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे आपके फैसले से शदीद इख्तिलाफ है। इस तरह दुश्मन पर हमारा दबदबा बैठ जाएगा। जिस दुश्मन की कुव्वत का पूरा अंदाजा न हो, उसकी तरफ पेशकदमी के बजाय उसकी पेशकदमी का इंतजार ज्यादा करीने मसलहत है सुल्तान मुअज़्ज़म। इंतजार? दुश्मन हमारे इंतजार को हमारी कमजोरी समझेगा, और वैसे भी महाज जंग में दुश्मन को इंतखाब का मौका फराम नहीं करना चाहिए। हमारी इत्तलात के मुताबिक चंगेज खान का बेटा जौजी हमारी सरहदों पर लूटमार कर रहा है। पहले उसे हम सजा देंगे। सालार आजम, सुल्तान अली, कूच की तैयारियां की जाए। सुल्तान ने जंग के लिए ललकारा है जेबी नोयन। सुल्तान की फौजें तादाद में बहुत ज्यादा है, वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त बेहतर यह है कि हम निकल जाएं। जेबी नोयन, खाकान आजम चंगेज खान का बेटा ललकारे जाने के बाद जंग किए बगैर लौट जाए, नामुमकिन। तलवार जरूर चलेगी। खुले मैदान में जंग करना खुदकुशी होगी। हम लड़ते लड़ते पीछे हटते हुए उन्हें तंग खाटियों के अंदर ले आएंगे जेबी नोयान। असल मजा जंग का वहां आएगा। जो हुक्म, और नहीं फूके जाएं।
सुल्तान मुअज्जम, तातारी खैमागाह खाली पड़ी है और जोजी अपने खैमों में जलते हुए अलाव छोड़कर रातों रात खामोशी से फरार हो गया और किसी को कानो कान खबर न हुई। नाकाबिल यकीन। हमारे वहम गुमान में भी न था कि यह वैशी कौम इस कदर जंगजू भी हो सकती है। कल उनके मुट्ठी भर सिपाहियों ने पहाड़ियों में घेर कर हमारी आधी सिपाह को काट कर रख दिया। गुस्ताखी माफ सुल्तान मुअज्जम, हमने अपनी गलती का खमियाजा भुगता। हमारी बहादुर अफवाज दुश्मन के ताक़ुब में उस तंग घाटी तक जा पहुंची जहां तातारी हमें लाना चाहते थे। उस तंग घाटी में घोड़ा फिराना बहुत मुश्किल काम था सुल्तान मुअज्जम। वो जौहर क्या दिखाते हैं, फिर तातारियों की बर्वक्त कुमत भी पहुंच गई। तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम्हारे मशवरों पे हम अमल करते तो अंजाम मुख्तलिफ होता? यकीनन नालीजा, तुम्हारी भूल है। सुल्तान मुअज्जम, हाकिम कौकम तैमूर मलिक का पैगाम रसा, बारियाबी की इजाजत चाहता है। इजाजत है। सुल्तान आजम, पैगाम रसा हाजिर है। सालार आजम। सुल्तान अली। देखो तैमूर मलिक क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अली मुकाम, ताजीम के बाद अर्ज है कि कौकन में मेरे पास सिर्फ 5000 सिपाही हैं। मुझे यकीन है कि मैं इस तादाद के साथ भी तातारी यलगार को खासी मुद्दत तक के लिए रोक सकता हूं। दरखास्त यह है कि अगर 20,000 सवारों की कुमक इनायत की जाए तो मैं अल्लाह की ताईद से तातारियों के इरादों को हमेशा के लिए बदल सकता हूं। इसके अलावा अर्ज है तैमूर मलिक अगर अपने आप को हमसे ज्यादा आजमूदा कार समझता है तो ये उसकी भूल है। तैमूर मलिक जैसे बहादुर सिपाही को मायूस करना शायद। उसे लिख दो। हम देखना चाहते हैं कि वो 5000 सिपाह के साथ तातारी लश्कर को कब तक रोक सकता है। इसके अलावा अर्ज है कि ताहिर बिन यूसुफ की सिफारत का एक आदमी कौकन के बाजार में एक हीरा फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। ताहिर बिन यूसुफ, बैठो। शुक्रिया। तुम्हारी गिरफ्तारी की इत्तला सुल्तान तक पहुंच चुकी है। मैं उनके हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। मैं तो 2 माह से कैद में हूं। मुझे मालूम नहीं बाहर क्या हो रहा है, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि किसी दिन तातारी अचानक आपकी सल्तनत पर भी हमला कर देंगे। नौजवान, हमला हो चुका। तातारियों से अभी जंग जारी है। अब तक तो हमारी बदतरीन शिकस्त की खबरें शायद बगदाद तक पहुंच चुकी होंगी। मुमकिन है इस्लाम पर कुफ्र की पहली फतह की खबर सुनकर खलीफतुल मुस्लिमीन के महल में चरागा भी किया जा चुका। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या वाकई हमला हो चुका? क्या वाकई हमें शिकस्त हो गई? काश मैं बगदाद पहुंचकर वहां के लोगों को ये सब कुछ बता सकता। बगदाद में खलीफा का महल कौकन के कैद खाने से ज्यादा खतरनाक साबित होता। खलीफा को जो तुमसे काम लेना था वो ले चुके। अब शायद तुम्हारे जिंदा रहने की जरूरत महसूस न करें। मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बगदाद पहुंचकर अपनी गलती का कफारा अदा कर दूं। नौजवान, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें इस साजिश का शक किन लोगों पर है? मैं पूछना चाहता हूं मेरे बकिया 2 साथी कहां हैं? सुल्तान मुअज्जम ने दोनों का सर तलब कर लिया था। अगर मेरे वो 2 साथी जिंदा होते तो शायद मैं आपके सवाल का जवाब सही दे देता, लेकिन मैं
यकीन से कह सकता हूं कि आपका असल मुजरिम साबिक वजीर खारजा वहीदुद्दीन है, और अगर वो जिंदा है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उसका सर लेकर बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाऊंगा, वरना मेरा सर हाजिर होगा। हमारे असली मुजरिम खलीफा और वजीर आजम है। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकते। जिस दिन आलम इस्लाम के ये सुतून इस कदर खोखले हो गए, उस दिन दुनिया में हमारे लिए कोई खित्ता महफूज नहीं रहेगा। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि खलीफा के कई जासूस पकड़े भी जा चुके हैं? इस तमाम साजिश में वजीर खारजा वहीदुद्दीन था। सुल्तान मौजम का एलची आपसे मुलाकात की इजाजत चाहता है। इजाजत है। सुल्तान मौसम का हुक्म आ गया है। तुम चाहो तो ये पढ़ सकते हो। मैं इस मकतूब की तहरीर आपके चेहरे पर पढ़ चुका हूं। कब तक जिंदा हूं मैं? कल तक। नौजवान, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं मजबूर हूं। आज का ये जश्न खारज़म में हमारी पहली फतह का जश्न। जी खान आज़म, तेरा खाकान तुझसे और जेबी नोयाब से बहुत खुश है और अपने हाथ से जाम पेश कर। खाकान आजम को अपने बहादुर बेटों से यही तवक्को थी। खान आज़म, मुझे खारज़म की जंगी हिमाकत पर सख्त ताज्जुब है। जी, जब शिकस्त मुकद्दर बन जाया करती है तो अक्सर ऐसा ही होता है। अगर शहजादा जलालुद्दीन उसके साथ ना होता तो हम मलाउद्दीन का सर खान आज़म के कदमों में ला डालते। एक सर खाकान आजम के कदमों की बरकत से ख्वारिज़म वाले सरों के मीनार थे। शहजादा जलालुद्दीन बहुत आज़मुदाकार है। वो शेर ख्वारिज़म कहलाता है और मैं समझता हूँ वो तातार का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। शेर ख्वारिज़म। हम शेरों का शिकार उनके कछार में घुस कर किया करते हैं। तो सोचता है बेशक खाकान आजम, शिकार का मजा भी तभी आता है। हाँ, तुम्हारा खाकान तुम सबसे एक सवाल करना चाहता है। ये बताओ कि अलाउद्दीन ख्वारिज़म ने जोजी का ताक़ुब क्यों नहीं किया? सुनाए? चुकता है, बोलता है। शेजी तू ये बिलोयान जोजी सुनता है? सिर्फ खाकान आजम की बसीरत ही इसका जवाब दे सकती है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे खाकान की बसीरत इसका जवाब दे सकती है। अलाउद्दीन ने जोजी का ताक़ुब इसलिए नहीं किया कि वो तातारी तलवारों की काट से डर गया है। उसे संभलने का मौका मत दो। जोजी, तुम जेबी नोयान को साथ लेकर कोकन पर हमला करो। चुकता, तुम तुलाई को साथ लेकर अतरार पे यलगार करोगे। उल्ताई और शेगी तुम ख्वारिज़म की सरहदों में कयामत बर्पा कर दोगे।
ہم اور سوگدائی بخارا کی طرف کوچ کریں گے. جشن مناؤ. تنگری یہ غدار ہے. اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تم اسے بیان کرو، ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تم لوگ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اگر تم بغداد میں اپنے کسی عزیز کے نام کوئی پیغام دینا چاہو تو ضرور دو، ہم اسے پہنچا دیں گے. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہر مسلمان میرا عزیز ہے. اس وقت کفر کی طاقتوں نے اسلام کے خلاف اتحاد کر لیا ہے. میرا پیغام سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو متحد کر لیں. اور بس اب آخری دعا مانگنی ہے تو مانگ لو. اے رب العزت، میں نے تیری راہ میں جہاد کے لیے تلوار سے کھیلنا سیکھا تھا. کیا میرے لیے ذلت کی یہ موت لکھی ہے؟ میں نے تو ابھی سلطان صلاح الدین کی تلوار کا حق بھی ادا نہیں کیا. انسانوں کے غلط فیصلے منسوخ کرنا تیری قدرت سے بعید نہیں مالک. رہ مالک. تیار ہو جاؤ. ساتاری آن پل سے